Welcome class. So it's our next topic, importance of communication. So the first importance of the communication is it facilitates coordination. Means communication makes coordination between different groups, different department, different sections which works under a same organization. एक ही organization है, उसी organization के different departments में whatever the informations are they are needed, they transfer these informations for making their coordinations. For example, if the production is not adequate, how the firm is made to sales? अगर adequate production नहीं तो sales कैसे होगा? So there must be an information needed between the production department and sales department, and that information is exchanged through the communication. That's when communication provides coordination. Is it clear? Now the second one is here, provide necessary data information for decision making. That's mean communication provides a tool for decision making. When you are deciding to something, you must having some knowledge, information regarding that, and these knowledge and information must be communicated by the management for that purpose. Communication जो होता है वो मैनेजमेंट आपको करता है. Why? क्योंकि वो आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. जब वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिलेगी तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं. लाइक आपने देखा होगा कुछ फैक्ट, कुछ रूल्स के बेसिस पे कई बार कोई चीज़ें डिसाइड होती हैं. तो ये है बेटा क्या कि कम्युनिकेशन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंस हमें क्या मिल रहा है कि कम्युनिकेशन हमें वो नेसेसरी डेटा या इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है फॉर द मेकिंग डिसीजंस. नाउ द नेक्स्ट वन इज इट इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी. It increases managerial efficiency. What do you mean by managerial efficiency? Every individual in the organization having some ability, but communication provide exact things and data regarding to the job or task, which makes to complete the organizational goal. For completing these tasks or the organization goal, there should be needed some information, and when you do all these things in a right way, that's mean you are also increasing your productivity and efficiency towards the management. भाई अगर आप कोई काम कर लेते हो तो रिजल्ट यही है कि आप यानी कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, एंड दैट शोज कि आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है. इसीलिए हम देखते हैं कि मैनेजमेंट में every individual must be assigned the job or task by the management, and that shows कि जो हमने expected किया था उस person से क्या वो fulfill करता है. अगर वो fulfill करता है that's mean उसकी efficiency increase होती है. तो communication also help to increasing efficiency of the individual. Now the next one is here, it also promotes cooperation and industrial peace. Communication is not a one-way process. Communication is a two-way process, and it promotes cooperation. That's mean there must be some information passes for the mutual understanding between the management and workers. And sometimes if there is any kind of the clashes or the conflicts, the communication made there a peace between them. अब ऑब्वियसली बात है कोई झगड़ा हो जाए, कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए बेटा, तो अगर वो इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन दोनों के बीच हो तो बातें करके होता है ना, हम कहते हैं ना बातें करने से चीजें हल हो जाती हैं. द सेम थिंग इज हियर, व्हेन द कम्युनिकेशन गोज देयर मस्ट बी सम क्रिएटिविटी अमंग द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल पीस और द कोऑपरेशन विच दे प्रमोट्स, जिसको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं सिंपली. द नेक्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप. अब देखो मैं तुम्हें ये चीजें बता रहा हूं तो क्या है, मेरी बातें तुम फॉलो करते हो ना, तो ये क्या है जो मैं तुम्हें एक्सचेंज कर रहा हूं, जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जो फैक्ट दे रहा हूं, जो डेटा दे रहा हूं, ये सब क्या है बेटा, ये सब कम्युनिकेशंस हैं और तुम इसको फॉलो करते हो. और जो तुम किसी को फॉलो करते हो वो पर्सन होता है लीडर और तुम हो उसके फॉलोअर. तो हम दोनों के बीच में इसी कम्युनिकेशन के थ्रू क्या हो रहा है, एक इफेक्टिव लीडरशिप स्टैब्लिश्ड हो रही है जो कि मैं कर रहा हूं. मैं यहां से इंफॉर्मेशन जो तुम्हें नीडेड है वो दे रहा हूं और तुम उसके अकॉर्डिंग वर्क्स कर रहे हो. लेट्स सी द नेक्स्ट.
The next topic is what? We talked about the forms of communication. There is basically two forms, formal communication and informal. Actually बेटा formal informal क्या है, पहले इसका concept ले लो. Formal communication को हम कह सकते हैं कि वो communication जो किसी एक particular process या way में चलता हो, हम इसे official communication भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं बेटा? Official communication. That's mean they always comes to the top to bottom. कहाँ से आएंगे? Top से bottom आएंगे. कैसे आएंगे? भाई टॉप में कौन होता है? हमारे मैनेजमेंट ऑफिसर्स होते हैं और वे इंफॉर्मेशन फ्लो करते हैं. तो इंफॉर्मेशन फ्लो होके कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी. किसके पास जाएगी? नीचे. सबऑर्डिनेट्स के पास. किसके पास जाएगी बेटा? सबऑर्डिनेट्स के पास. तो भाई हम कह सकते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा है? फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है. फॉलो द चैन ऑफ कमांड. चैन ऑफ कमांड तो क्लियर है ना? वी टॉक्ड अबाउट इट इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. चैन ऑफ कमांड. ठीक है. तो ये फॉर्मल है और फॉर्मल क्या करता है? बेसिकली ऑफिशियल कम्युनिकेशन शो करता है. वहीं पे अगर मैं बात करूं इनफॉर्मल की, टेक्स्ट प्लेड आउटसाइड द ऑफिशियल चैनल, मतलब कोई ऑफिशियल चैनल नहीं होगा. देयर इज नो सच काइंड ऑफ द फॉर्मल थिंग्स नहीं होगी. नो फॉर्मल चैनल्स. इट्स क्रिएट इनफॉर्मल चैनल्स लाइक गॉसिप्स. वो मिस्टर एक्स जो थे ना, आज मिस्टर एक्स को मैंने देखा वो किसी के साथ घूम रहे थे. अब ये इंफॉर्मेशन कौन है? प्यून बता रहा है किसी और को. तो दैट्स मीन व्हाट? ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है. क्या इसकी जरूरत थी ऑफिस में? नहीं थी. लेकिन देखिए, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कंसंट्रेट ऑन ऑफिशियल मैटर्स. ठीक है. इट कंसर्न विद ऑफिशियल मैटर्स. दैट्स मीन बेसिकली formal communication works for the office purposes, where when we talk about the informal communication is just for the not concerning with the work से concentration इसका नहीं होगा. कोई भी concentration उस पे नहीं है, वर्क पे नहीं है. तो किसके लिए? एक्चुअल में ये अपनी सोशल नीड के लिए होता है. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसके लिए होता है? अपनी सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए होता है. द नेक्स्ट थिंग इज इट मस्ट बी इन रिटन और ओरल. ठीक है. जब भी होता है बेटा ये रिटन और ओरल फॉर्म में होता है. नॉर्मली बेटा ये रिकॉर्डेड किए जाते हैं या फाइल्स के फॉर्म में होते हैं. कौन? फॉर्मल कम्युनिकेशन. अब क्यों होते हैं? बड़ा सिंपल सा है. ऑफिस में हर एक चीज रिटन फॉर्म में होती है क्योंकि वो फैक्ट है, डेटा मेमोराइज फॉर्म के लिए, या फिर हो सकता है फ्यूचर में किसी और पर्पज से हमेशा सेव करके रखते हैं. दैट्स वाई ये रिटन या ओरल फॉर्म में होते हैं. बट वहीं पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें, इट ऑलवेज शोन इन द फॉर्म ऑफ ओरल. गॉसिप्स बताया ना, तो गॉसिप्स किस में होते हैं? भाई मैंने उनसे कह दिया, वो उनके पास पहुंचे, उन्होंने किसी और को बता दिया. तो ये सब गॉसिप्स का वे है. नाउ अगर मैं बात करूं डायरेक्शंस की, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का डायरेक्शंस क्या है? वर्टिकल, डाउनवर्ड. इस केस में क्या होगा? डाउनवर्ड में क्या है? सिंपल सा है भाई कि डाउनवर्ड है यानी कि इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे पास हो रही. अब इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे कब पास होती है बेटा? दैट्स मीन सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट सेंडिंग नोटिस, पासिंग गाइडलाइंस. क्लियर है? क्या होगा? ऐसा कुछ पास होता है. ठीक. वहीं पे अगर मैं बात करूं सेकंड वन जो होता है बेटा अपवर्ड. और अपवर्ड क्या है? सबऑर्डिनेट्स क्या कर सकता है? सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को कुछ सजेशंस या एप्लीकेशंस देता है. जस्ट लाइक हियर एप्लीकेशंस फॉर लीव, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन नीडेड है तो उसको पास करता है. क्लियर है? नाउ टॉक अबाउट द इनफॉर्मल ग्रैब वाइन. ग्रैब वाइन का सेंस क्या है? There is no such kind of the chain or any serious command or the channels. कहीं से भी ओरिजिन होगा और कहीं पे भी पहुंच सकता है. That means का जो ओरिजिन होगा वो किसी भी लेवल पे हो सकता है. हो सकता है टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट हो वही प्यून के पास जाए, पूछे आज मुझे ये बता दो कि मिस्टर ए ऑफिस में लेट आए हैं या जल्दी आए. और तुम्हें पता है कि एक ऑफिस का बॉस अपने प्यून से बात करे, ये कोई फॉर्मल चैन तो नहीं है, ये इनफॉर्मल चैन है. ठीक है. दैट्स मीन इट कट्स स्केलर चैन. जो चैन बनी होती है ये उसको फॉलो नहीं करता है. क्लियर है? एंड इट ऑल्सो स्प्रेड्स रूमर्स. अब रूमर्स क्या है? कुछ अफवाहें उड़ेंगी. जैसे मैंने बात की थी ना, मिस्टर एक्स उनके साथ घूम रहे थे, तो ऐसी अफवाहें उड़ती हैं. ठीक है. दैट्स ऑल फ्रॉम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास बिटवीन द डिफरेंसेस बिटवीन फॉर formal and informals and effective communication. These topics are remain in this chapter, so we will discuss in later. That's all.